Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we will discuss about the new topic, that is numerical inequality. As you see the symbols on the slides, that is greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. And what do inequality means? A mathematical statement that uses one of the inequality symbols to state the relationship between two quantities. That means inequality is an equation, but instead of an equal sign, it has one of these signs. That means less than or equal to, greater than or greater than or equal to. And now here x is less than 5. X is less than 5. That means we have to find the values of x that must be less than 5. That means if we have to try to write the name of 10 numbers that are less than 5. Yes. That means the number less than 5 are to the left of 5. ठीक है, लेस देन 5 लेना है तो हमें 5 के लेफ्ट पर हमें देखना है ऑन दिस नंबर लाइन. That means 5 is there. That means on this side we have to write the numbers. That means if we have to say 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, etc. That means you are right. And there are also numbers in between the integers, like 2.5, 1 by 2, -7.9, etc. यानी कि कंप्लीट नंबर के अलावा हम ये फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. ओके, द नंबर 5 would not be correct answer because 5 is not less than 5. ठीक है, 5 हमारे पास करेक्ट नहीं होगा. 5 से लेस की बात कर रहे हैं तो हम 4, 3, 2 इसको राइट करेंगे. तो -2.5 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है. ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये 5 नहीं होगा क्योंकि 5 जो है 5 से लेस नहीं है. And now we have x is greater than equal to -2. That means we have to write the numbers greater than or equal to -2. And now if we have to write the 10 numbers that are greater than or equal to -2, that means we have to move to the right of 2. ठीक है, the number greater than -2, that means we have to move right of 2 on -2 on the number line. -2 is there, that means we have to move on this side. That means we can say, that means -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Then you are right. And there are also numbers between the integers like -1 by 2, 0.2, 3.1, 5.5, etc. That means minus the number -2 would also be there क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लेना है, greater than equal to the. Okay, yes. And now where this -1.5 on the number line, is it greater than or less than -2? Yes. -1.5, here 0, 2, ठीक है. अब -1.5 that is lies between -1 and -2. It means -1 is right of -2. ठीक है, जो -1 है, -1 इधर क्या होगा, -2 के राइट पर होगा. और -1.5 that is also right of -2. ठीक, तो it means
we have this number, and now we have to solve the inequality. W plus 5 is less than 8. That means adding minus 5 on both sides, we get W is less than 3, क्योंकि 5 से minus 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 minus 5 3 हो जाएगा. It means W is less than 3. A number less than 3 are solution of this problem. Yes, now we have to discuss more example. If 8 plus r is greater than equal to minus 2, that means we have adding minus 8 on both sides. So minus 2 plus minus 8. Minus 8 से minus 8 cancel. It means r is greater than equal to minus 10. ठीक है, मीन्स हमें सिंपल वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे हम इक्वलिटी का साइन सोल्व करते हैं. इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, उसको हम डिस्कस करेंगे. Here we have r is greater than equal to minus 10. That means all the numbers from minus 10 and up and including minus 10 make this solution. ठीक है, इक्वलिटी इसलिए कि माइनस 10 इसलिए हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का भी सिंबल है. ओके, यस, नाउ वी हैव x minus 2 is greater than minus 2. तो अब minus 2 को उधर ले जाइए या minus 2 को ऐड कर दीजिए. You will get x minus 2 plus 2 is greater than minus 2 plus 2. It becomes x is greater than 0. Okay, that means the all numbers which is greater than 0 make the problem true. Okay, yes, now we have another 4 plus y is less than equal to 1, adding minus 4 on both sides, and therefore y is less than equal to minus 3, because 1 minus 4 you will get minus 3. Okay, that means the all the numbers which are less than or equal to minus 2 minus 3, okay, make this problem true. Yes, now there is one special case. अब special case क्या है कि sometimes we may reverse the direction of inequality sign. कई बार हमें जो है inequality sign की डायरेक्शन को भी रिवर्स करना है. ये हम तभी करते हैं जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी को बाय ए नेगेटिव नंबर. जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है और जो ग्रेटर देन है वो लेस देन में कन्वर्ट होता है. इट मीन्स वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी. यस, नाउ वी हैव दिस वन minus 3y plus 5 is greater than equal to greater than 23. तो हमें पहले सबसे पहले इस 5 को रिमूव करना है. दैट मीन्स वी हैव टू subtracting 5. It becomes we get 3y is greater than 18. Okay, 23 minus 5 that means 18. And now we have to divide by minus 3 क्योंकि minus 3 जो है y के मल्टीपल में है, तो we have to divide by minus 3 that means negative 3, and therefore it becomes, अब यहाँ पर जो है पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वलिटी का साइन को रिवर्स करेंगे, यानी कि ग्रेटर देन है तो हम क्या राइट करेंगे, लेस देन, और ये माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल और 18 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इट बिकम्स माइनस 6. इट मीन्स y is less than minus 6. ओके, एंड नाउ वी हैव टू ग्राफ द सॉल्यूशन. तो ये हमने नंबर लाइन पे माइनस 6 और ये इस तरफ लेफ्ट साइड पे एरो. अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड पे एरो होती है और अगर राइट ग्रेटर देन हो तो राइट साइड पर. ओके, एंड नाउ ट्राई दिस. यू हैव टू write down the statement and solve this. 2x plus 3 is greater than x plus 5. Solve minus c minus 11 is greater than 23 and 3 into r minus 2 is less than 2r plus 4. Okay, note down this statement and do this. Yes, and now we have to consider this. 2x minus 6 is less than 4x plus 8. यानी कि इसके अंदर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनस 4x है तो हम
जब हमारे पास इक्वलिटी होती है तो हम क्या करते थे कि x को एक तरफ कोलेक्ट करते थे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कोलेक्ट करते थे, या हम क्या करते हैं -4x से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स -2x - 6 इज लेस देन 8, क्योंकि 2x - 4x इट बिकम्स -2x। अब 6 को ऐड कर दीजिए क्योंकि -6 को हमें रिमूव करना है, इट बिकम्स -2x इज लेस देन 14। एंड अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम नेगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे तो लेस देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में, ठीक है। इट बिकम्स x इज ग्रेटर देन -7। ओके, यस, नाउ वी हैव, now tell me, is it possible to construct a triangle whose sides measures 4, 11 and 15 centimeter respectively? Yes, as you know, the triangle is possible if the sum of two sides is greater than the third side. Here it is not possible because, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 + 11 क्या होगा, 15, और 15 इज इक्वल टू 15। तो मेनली हमारे पास क्या होना चाहिए कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू यूज, ओके। एंड नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल। Yes, now we have to discuss the rules for operations on inequality। यानी कि ये इनइक्वालिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5 इज लेस देन 7 है, +3 ऐड करते हैं तो ये 5 + 3 8 इज लेस देन 10। अब इसकी जो इनइक्वालिटी का साइन है यहाँ पर चेंज नहीं होता, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसमें चेंज होता है, ठीक है। इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। अब जब हम -2 से इसको ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, एडिशन में नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो जाएगा और डिवीजन में भी साइन चेंज हो जाएगा। You have to complete this table, okay? Yes, now we will discuss about the properties for three real numbers a, b and c. If a is greater than b and b is greater than c, then we can say that a is greater than c. And if a is greater than b and c is greater than 0, then a plus c is greater than b plus c. यानी कि इनइक्वालिटी के अंदर हम एक नंबर ऐड कर सकते हैं, ओके। एंड देन वी हैव इफ a is greater than b and c is greater than 0, then a minus c is greater than b minus c। यानी कि एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। सेम इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, AC is greater than BC, okay। And now if A is greater than 0, B is greater than 0, then A divided by C and A divided by C is greater than B divided by C, okay। और नेक्स्ट हमारे पास है, जस्ट यहाँ पर हमारे पास डिवाइड का सिंबल होना चाहिए, a डिवाइडेड बाय c एंड b डिवाइडेड बाय c, ओके। यस, नाउ वी हैव व्हाट हैपेंस इफ c इज लेस देन 0, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज लेस देन 0, तो उस केस में जो ac है क्या हो जाएगा, देन ACB and C is less than BC, ठीक है। C से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो AC होगा वो B से लेस हो जाएगा, जस्ट वेट, AC
नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बी से लेस हो जाएगा और सी बी सी से लेस हो जाएगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट ए सी इज लेस देन बी सी. ओके, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो रिवर्स हो जाता है. ओके, यस. नाउ we have to consider the example. If b is greater than a, then which expressions will have the highest value given that a and b are positive integers? The first option a minus b, second a cross b, third a plus b, fourth cannot say. If b is greater than a, अब इनमें से किस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट वैल्यू होगी? और a और b हमारे पास पॉजिटिव है. That means here we have b is greater than a. This implies a is less than b. You can write this. Okay, and then we can say that a minus b is less than 0. ठीक है, a minus b क्या होगा? 0 से लेस होगा. तो अगर हम a plus b की बात करें तो a plus b भी क्या होगा? 0 से ग्रेटर होगा और a b भी 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, एडिशन भी पॉजिटिव हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव हो जाएगी. बट if we have to consider the example, if a is 1 b is 4, then its product ab 4 is less than a plus b. ठीक है, क्योंकि a plus b बन जाएगा 1 plus 5. ठीक है, तो 4 is less than 1 plus 4. It means 4 is less than 5. और जब a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, b की वैल्यू 4 लेते हैं, तो it becomes 4 into 2, that is equal to 4 into 2, that means 8. ठीक है, और 4 plus 2 क्या हो जाएगा? 6. तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? ab is greater than a plus b. That means अब उसमें लेस भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है. दैट मीन्स वी कैन नॉट से which one of a plus b and ab has the higher value. Therefore, the conclusion is the D option. Okay, yes. And now we have to solve the inequality for x belongs to R. Here we have 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6 into x minus 2. Two inequalities given है. First is this one and this will be the second. इसको हम साइड बाय साइड सिंप्लीफाई करेंगे. तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. When we have to multiply, it becomes 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12. ठीक है, अब इनइक्वालिटी को जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं वैसे ही करेंगे जैसे सिंपल इक्वेशंस को करते हैं. तो इट बिकम्स 4x minus 4 is less than 6x minus 12. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं, जो x वाली टर्म्स हैं उसको एक तरफ लेफ्ट की तरफ और जो नंबर्स हैं कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको राइट साइड पे. तो -4 राइट साइड पे जाएगा +4 हो जाएगा. तो इट बिकम्स 4 minus 12. और ये जो 6 है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? -6x. अभी तो सिंबल क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है, एंड नाउ वी हैव 4x minus 6x. It becomes -2x. -2x is less than -8. ठीक है, अब ये -2 है तो -2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये लेस देन जो है ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया. इट मीन्स x is greater than 4. This is the solution for first one. Yes, and now we have to solve the second term. In the second term, that means we have 2x minus 3 by 4 plus 6, that is greater than equal to 2 plus 4x by 3. ठीक है, तो अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करेंगे. 2x minus 3 डिवाइडेड बाई 4. अगर हम चाहें तो पहले इसका एलसीएम ले सकते हैं. तो
पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 प्लस 6 इंटू 4 दैट मीन्स 24 एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट साइड पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट साइड पे 3 एलसीएम होगा, इट बिकम्स 6 प्लस 4x बाय 3। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2x प्लस minus 3 plus 24 it becomes 2x plus 21 by 4 is greater than equal to 4x plus 6 by 3 and now cross multiply it becomes 3 into just wait 3 into 2x plus 21 is greater than equal to 4 into 4x plus 6। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो we get 6x plus 21 into 3 it becomes 63 is greater than equal to 16x plus 24। ठीक है, अब 16x को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो इट बिकम्स 6x minus 16x is greater than equal to 24 minus 63 and here it becomes minus 10x is greater than equal to 63 minus 24 it becomes 9 and 5 minus 2 that means 39। ठीक है, इट मीन्स और यहाँ पर क्या माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 39। अब हम माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा, इट बिकम्स माइनस 39 बाई माइनस 10 दैट मीन्स x इज लेस देन देयरफॉर x इज लेस देन 3.9। ठीक है, अब इनका जो है ना कंक्लूजन निकालना है कि हमारे पास क्या इसका कंक्लूजन होगा, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। हियर वी हैव टू राइट 0, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं 4 और यहाँ पर क्या नंबर है 3.9। ठीक है, ये 3.9 वाला हम नंबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि greater than 4 that means have to move on the right side of 4 and when x is greater than less than minus 3.9 that means we have to move on this left hand side। it means there is no common part in between them, it means no solution will be there। ठीक है, ये डिपेंड करता है इन इक्वेशंस के ऊपर। अगर सपोज करो कि हमारे पास गिवन होता x इज लेस देन 4 एंड x इज लेस देन माइनस 3.9, तो हम नंबर लाइन पे इसको जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारे पास 3.9 और ये है 4। ठीक है, अब ये लेस देन है तो लेस देन में लेफ्ट साइड पर और 4 से भी करेंगे तो लेफ्ट साइड पर, दैट मीन्स इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा दैट इज द सोल्यूशन, दैट मीन्स x इज लेस देन 3.4। ठीक है, क्लियर हो गया कि इस तरह से हम इसको सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। दिस पार्ट, ये आपका पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये आपका एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको बताया है कि अगर सिचुएशन इस तरह से होती तो हम ये सोल्यूशन फाइंड करते। अगर हमारे पास ये होता कि x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज ग्रेटर देन 3.9 तब हमारे पास कॉमन सोल्यूशन क्या होता, x इज ग्रेटर देन 4। okay, I hope you understand. Thanks and have a nice day.